1 ईयर बाइबल रीडिंग प्लान, 1 साल का बाइबल रीडिंग प्लान, मैथ्यू 12 चैप्टर 22 वर्स से 50 वर्स तक, जेनेसिस 40 चैप्टर 41 चैप्टर हम पढ़ेंगे इंग्लिश में, किंग्स जेम्स वर्जन में से, हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। मैथ्यू 12 चैप्टर 22 वर्स से 50 वर्स तक, किंग्स जेम्स वर्जन में से पढ़ेंगे। पवित्र आत्मा हमारी मदद कर, हमें ये वचन सिखा। हमारे अंदर तो निवास कर रहा है सत्य का आत्मा, हम में तो उंडेला गया है। हमारे चरित्र को तू बना, हमारी सोच तो बन जा और हमें परमेश्वर के कामों में ऊंचा कर। नासरी यीशु मसीह के नाम में हम विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन आमीन। मैथ्यू 12 चैप्टर 22 वर्स से 50 वर्स तक। Then was brought unto him one possessed with a devil, blind and dumb, and he healed him insomuch that the blind and dumb both spake and saw, and all the people were amazed and said, Is not this the son of David? But when the Pharisees heard it, they said, This fellow doeth not cast out devils, but by Beelzebub, the prince of the devils. And Jesus knew their thoughts, and said unto them, Every kingdom divided against itself is brought to desolation, and every city or house divided against itself shall not stand. And if Satan cast out Satan, he is divided against himself. How shall then his kingdom stand? And if I be Beelzebub, cast out devils, by whom do your children cast them out? Therefore they shall be your judges. But if I cast out devils by the Spirit of God, then the kingdom of God is come unto you. देखिए, यीशु खुल्लम खुल्ला बता रहा है यीशु कैसे दुष्ट आत्माओं को निकालता था। उसने खुल्लम खुल्ला डिक्लेयर कर दिया है कि उसका स्रोत दुष्ट आत्मा को निकालने का परमेश्वर के आत्मा उसका स्रोत था। परमेश्वर का आत्मा उसका स्रोत था दुष्ट आत्मा निकालने के लिए। आपको ध्यान पकड़ना है इस विषय के ऊपर। ओके, दुष्ट आत्मा निकालने के लिए यीशु का स्रोत, यीशु का जरिया, यीशु की सहायता, यीशु के काम जो है वो परमेश्वर का आत्मा था। ओके, देन द किंगडम ऑफ गॉड इज कम अनटू यू, और एल्स how can one enter into a strong man's house and spoil his goods, except he first bind the strong man, and then he will spoil his house. इसके विषय में भी मैंने अभ्यास किया कि ये बलवान कौन है। ये बलवान मनुष्य का आत्मा है। ओके, और इसको ही बांध दिया जाता है और फिर दुष्ट आत्मा को घुसाया जाता है। ठीक है, भेजा जाता है। जब हमारा खुद का मनुष्य का आत्मा जो है परमेश्वर के चाल चलन में है, अगर उसको ही बांध दिया तो फिर हमारा शरीर, प्राण, हमारे कोई भी बातों में, हिस्सों में फैसला करना हमारे बस में नहीं रहता है। ओके, और इसके लिए वो सब दुष्ट आत्मा जैसा चाहता है वैसा ही हम उसके पीछे पीछे हम वो आत्मा हमको चलाते हैं। जो वो भेजने वाला है उसके इंस्ट्रक्शंस पर हमको एक कठपुतली के समान वो नचाता है हमको। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा खुद का नियंत्रण मनुष्य आत्मा में रहता है। लेकिन वही अगर बांध दिया जाए तो हमारा मनुष्य नियंत्रण हम खो दिए। अब खो दिए तो फिर अब हमारा प्राण और शरीर दुष्ट आत्मा जो भेजने वाला है दुष्ट आत्मा को उसके इंस्ट्रक्शंस के अनुसार नचाता है। ठीक है, तो ये काम होता है बंदिश करने वाले लोगों का। ठीक है, 30 वर्स से आगे पढ़ेंगे। He that is not with me is against me, and he that gathereth not with me scattereth abroad. 31 वर्स से आगे। Wherefore I say unto you,
all manner of sin and blasphemy shall be forgiven unto men, but the blasphemy against the Holy Ghost shall not be forgiven unto men. And whosoever speaketh a word against the Son of Man, it shall be forgiven him. But whosoever speaketh against the Holy Ghost, it shall not be forgiven him, neither in this world, neither in the world to come. Either make the tree good and his fruit good, or else make the tree corrupt and his fruit corrupt, for the tree is known by his fruit. O generation of vipers, how can ye, being evil, speak good things? For out of the abundance of the heart the mouth speaketh. A good man out of the good treasure of the heart bringeth forth good things, and an evil man out of the evil treasure bringeth forth evil things. But I say unto you that every idle word that men shall speak, they shall give account thereof in the day of judgment. For by thy words that thou shalt be justified, and by thy words thou shalt be condemned. Then certain of the scribes and of the Pharisees answered, saying, Master, we would see a sign from thee. But he answered and said unto them, And an evil and adulterous generation seeketh after a sign, and there shall no sign be given to it, but the sign of the prophet Jonas. For as Jonas was 3 days and 3 nights in the whale's belly, so shall the Son of Man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. The men of Nineveh shall rise in judgment with this generation, and shall condemn it, because they repented at the preaching of Jonas. And behold, a greater than Jonas is here. The queen of the south shall rise up in the judgment with this generation, and shall condemn it. For she came from the uttermost parts of the earth to hear the wisdom of Solomon. And behold, a greater than Solomon is here. When the unclean spirit is gone out of a man, he walketh through dry places, seeking rest, and findeth none. Then he saith, I will return into my house, from whence I came out. And when he is come, he findeth it empty, swept, and garnished. Then goeth he and taketh with himself 7 other spirits more wicked than himself, and they enter in and dwell there. And the last state of that man is worse than the first. Even so shall it be also unto this wicked generation. While he yet talked to the people, behold, his mother, his brethren, stood without, desiring to speak with him. Then one said unto him, Behold, thy mother and thy brethren stand without, desiring to speak with thee. But he answered and said unto him that told him, Who is my mother, and who are my brethren? And he stretched forth his hand toward his disciples and said, Behold my mother and my brethren. For whosoever shall do the whosoever shall do the will of my Father which is in heaven, the same is my brother and sister and mother. इसी वचनों को हम हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय का 22 वचन से 50 वचन तक। थैंक यू जीसस। मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय 22 वचन से 50 वचन तक। यीशु और बालजबुल 22 वचन से। जब लोग एक अंधे गूंगे को जिसमें दुष्ट आत्मा थी उसके पास लाए और उसने उसे अच्छा किया और वह बोलने और देखने लगा, इस पर सब लोग चकित होकर कहने लगे, यह क्या दाऊद की संतान है? परंतु फरीसियों ने यह सुनकर कहा, यह तो दुष्ट आत्माओं के सरदार बालजबुल की सहायता के बिना दुष्ट आत्माओं को नहीं निकालता। उसने उनके मन की बात जानकर उनसे कहा, जिस किसी राज्य में फूट होती है वह उजड़ जाता है, और कोई नगर या घराना
जिसमें फूट होती है बना न रहेगा। और यदि शैतान ही शैतान को निकाले तो वह अपना ही विरोधी हो गया है, फिर उसका राज्य कैसे बना रहेगा। भला यदि मैं शैतान की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ तो तुम्हारे वंश किसकी सहायता से निकालते हैं, इसलिए वे ही तुम्हारा न्याय करेंगे। पर यदि मैं परमेश्वर के आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ। ध्यान रखिए, देखो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह खुद इस बात को डिक्लेयर कर रहा है कि वो परमेश्वर के आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता है। यानी आपको परमेश्वर का आत्मा रहना ज़रूरी है अगर आप दुष्ट आत्माओं को निकालना चाहते हो तो। ओके, हमारे कोई भी हिस्से में आपको और एक बात ध्यान आएगी, देखिए हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा है। या कैसे कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल लूट सकता है जब तक कि पहले वह उस बलवंत को न बांध ले, तब वह उसका घर लूट लेगा। यहाँ पे बलवंत जो है ना, ये मनुष्य का आत्मा है। ओके, तो इस बलवंत को, अगर मनुष्य के आत्मा को सब अपने घर का कंट्रोल रहता है, ओके, अपने शरीर का कंट्रोल रहता है, अपने प्राण का कंट्रोल रहता है, अपने चीज़ों का कंट्रोल, समयों का कंट्रोल, सब कुछ कंट्रोल उस मनुष्य के आत्मा में पहले मौजूद रहता है, अरेंज किया होता है, सेटिंग में रहता है। लेकिन अगर उसको, उस मनुष्य आत्मा को अगर किसी ने जादू टोना करके बांध लिया, ओके, अब वो मनुष्य का खुद का जो कंट्रोल है वो काम नहीं करेगा। अब जिसने उसको बांधा है, जिस कारण से बांधा है, वो जैसा कहेगा वैसा ही दुष्ट आत्मा उसके द्वारा करवाएगा। ओके, उसके अंदर दुष्ट आत्मा को भेजकर उसका अगर कुछ भी चीज़ चाहिए तो उससे निकलवा के लाएगा। ओके, अगर कुछ उसका बिगाड़ना है तो उसके अंदर बैठ के उसी के द्वारा वो बिगाड़ के आ जाएगा। ओके, कुछ भी करना है वो उसके ही अंदर दुष्ट आत्मा को भेजकर करवा देगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे लिखा गया है कि या कैसे कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर, यानी मनुष्य के अंदर घुसना पड़ता है। ठीक है, मनुष्य के अंदर घुसना पड़ता है उसके आत्मा को वश करने के लिए, उसके आत्मा को कब्जा करने के लिए। ठीक है, अगर उसको घुसना है कुछ लूटपाट करने के लिए, कुछ भी, देखो इसके लिए परमेश्वर का वचन भजन संहिता 91 को आपने अच्छे से पढ़ना है। ओके, यहाँ पर ये घुसना जो है ये शैतान के आत्मा के विषय में लिखा है। ओके, शैतान का आत्मा मनुष्य के अंदर, जब मनुष्य का आत्मा कंट्रोल में है, बंधन में नहीं है। ओके, इसके लिए कहा गया है कि सत्य तुमको आजाद करेगा, स्वतंत्र करेगा। ओके, तो बंधन को तोड़ेगा वो, और वो कभी टूटता है जब लगातार आप यीशु मसीह के साथ समय बिताते हैं, तो परमेश्वर का आत्मा उसके ही समय में फिर आपको सच्चाई की पहचान कराता है। जैसे ही सच्चाई की पहचान आपको हो जाती है, आपका बंधन टूट गया, यानी जिसने भी आपको वश करके रखा होगा वो वशीकरण आपके ऊपर से टूट जाता है। ओके, अब आपके दूसरी बात, भजन संहिता 91 में बहेलिये के जाल के बारे में लिखा है, वो भी टूट जाता है। ओके, तीसरी बात जो विपत्तियों के बारे में लिखा है, वो विपत्ति को लगाने के लिए भी आपके मनुष्य आत्मा का नियंत्रण पहले लेना पड़ता है, ताकि विपत्ति में आपको लीड कर सके। समझ में आया? जो भी बड़े हादसे होते हैं, जो भी बड़ी घटनाएं हो जाती है, दुर्घटनाएं हो जाती है, तो वहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए मनुष्य आत्मा को कंट्रोल में ले लिया गया, वश में ले लिया गया, और फिर ये चीज़ों को किया गया। ओके, इसके लिए क्या बोला है, जहाँ पवित्र आत्मा है वहाँ आज़ादी है। अब मनुष्य आत्मा के अंदर, हमारे मनुष्य आत्मा के अंदर अब कौन आ चुका है? परमेश्वर का आत्मा आ चुका है। इसकी वजह से अब हमारे मनुष्य आत्मा को कैद करना असंभव है। ठीक है, अब हमारे शरीर को अगर बीमारी देना है, अगर हमारे प्राण को परेशानी देना है, तो वो दुष्ट आत्मा को घुसना पड़ता है। और घुसने के वक्त में हमारे अंदर का बल कौन बनता है? परमेश्वर का आत्मा।
तो हमारा मनुष्य आत्मा छटपटाता है, प्रार्थना करता है, रिब्यूक करता है, होली गोस्ट फायर को रिलीज करता है। तो ये क्या हो जाता है, वो घुसने वाले या घुसे हुए कोई भी दुष्ट आत्मा को रुकने नहीं देता है। वॉमिटिंग के द्वारा या फिर हमारे एक्सक्रीटास के द्वारा ये सारा चीज जो शैतान का है वो निकल जाता है, जो हमारे अंदर घुसाया जाता है। ओके, खाने के द्वारा, पीने के द्वारा, या हमको छूने के द्वारा, या स्मेल के द्वारा, 5 सेंसेस के द्वारा, या सोचों के द्वारा, या कुछ भी तरह से दुष्ट आत्मा को जो घुसाया जाता है हमारे शरीर को कब्जा करने के लिए, क्योंकि हमारा आत्मा तो कब्जा करने नहीं देता है ना, क्योंकि हमारे आत्मा में अभी परमेश्वर का आत्मा है। इसके लिए हमारा आत्मा दुष्ट आत्मा को घुसने नहीं देता है। इसकी वजह से वो जरिया दूसरा दूसरा बनाता है। और इसके लिए वचन में क्या लिखा है कि चोर आता है दूसरे दूसरे रास्ते से आता है, वो सीधे दरवाजे से नहीं आता है वो। ओके, लेकिन यीशु मसीह जब आता है वो सीधे रास्ते से आता है। ओके, अब ये सीधा रास्ता और टेढ़े मेढ़े रास्ते कौन से हैं? ये टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं जो शत्रु इस्तेमाल करता है। आंखों के द्वारा प्रवेश करता है, 5 सेंसेस से प्रवेश करता है, छूने से प्रवेश करता है, खिलाने पिलाने में से प्रवेश करता है। ओके, ये छुपे छिपाए रास्ते हैं जहां से वो दुष्ट आत्माओं को रिलीज करता है हमारे अंदर। इसकी वजह से हमारा आत्मिक जीवन परेशानी में आ जाता है। इसकी वजह से हम विपत्ति के बीच में आ जाते हैं। इसकी वजह से हमारा प्लान बिगड़ जाता है। इसकी वजह से हम में से मिस्टेक्स हो जाती है। ओके, क्योंकि ये क्या हो गया, पोल्यूशन, करप्शन हमारे अंदर घुसाया गया। समझ में आया? तो आपको समझ में आना चाहिए कि परमेश्वर का आत्मा हमारे मनुष्य आत्मा में है, तो हमने अपने आप को शुद्ध करना, स्वच्छ करना, करप्शन से आजाद करना पॉसिबल है। ओके, हर बार आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी बड़े प्रचारकों के, अभिषिक्त दासों को ढूंढते हुए जाने की जरूरत नहीं। हमारे अंदर से परमेश्वर के संगति में हमको अच्छे से अपना समय लगाए रखना है, ताकि हम उसी के अभिषेक के नीचे रहते रहते सच्चाई को प्राप्त करते रहते हैं। वही हमको छुटकारा देता है, छुड़ाता है। वही हमारी ढाल और झिलम बनता है। ओके, भजन संहिता के 91 में लिखा है, परमेश्वर की सच्चाई मेरी ढाल और झिलम है। ओके, तो हमारे रास्ते बिगड़ते नहीं है, हमारे पास इंस्ट्रक्शंस की कमी नहीं रहती है। हमको अच्छा चरवाहा मिल चुका है जो कभी हमको परमेश्वर के रास्ते से वंचित नहीं रखेगा। ओके, कोई भली वस्तु हमसे दूर नहीं रखी जाएगी। सब कुछ हमारे लिए भलाई में बदल जाएगा। ये सब कब होता है? जब मनुष्य आत्मा परमेश्वर के आत्मा को अपने अंदर लिए हुए है, तो उसी के इंस्ट्रक्शंस में समय लगाता है। उसके शरीर दूसरे कामों में वो बिजी नहीं रखता है। उसका प्राण कोई फालतूगिरी में वो अटकाए नहीं रखता है। ओके, जो समय बर्बाद करेगा ऐसे जगहों में वो अपने आप को फंसाए नहीं रखता है। ओके, वो कहाँ रखता है अपने आप को? जहां पर परमेश्वर का वचन लगातार उसको मिलेगा, उसके अंदर वो अपने शरीर को पकड़ के रखता है। ओके, अपने प्राण को पकड़ के रखता है। तो इसकी वजह से उसका शरीर और उसका प्राण सुरक्षित हो जाता है। ओके, क्योंकि वहां पे कौन से इंस्ट्रक्शंस आ रहे होते हैं? परमेश्वर के इंस्ट्रक्शंस आ रहे होते हैं, और जो उसके प्राण को और शरीर को लाभदायी बना देते हैं। ओके, और वो हर एक जगह में प्रोटेक्टेड और सुरक्षित रखते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम बोलते हैं कि जादू टोना वालों ने कुछ किया कराया, इसकी वजह से ये विपत्ति हो गई, इसकी वजह से ये हादसा हो गया। ये क्यों हम बोलते हैं? तो आपने चौकसी नहीं की, आपने प्रार्थना के समय नहीं लगाए। जैसे मैंने आपको बोला, रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज के अंत में जब हमने प्रार्थना किया, या मुझे लगता है मेडिटेशन के वक्त में हमने प्रार्थना किया, मुझे याद नहीं, लेकिन वहाँ पे हाँ मेडिटेशन के वक्त में किया हुआ प्रार्थना। आप देखना, अंत में मैंने बताया आपको, वहाँ मैंने आपको बताया कि आप सोचेंगे इतनी छोटी प्रार्थनाएं ये कैसे काम करेगी। तो यहाँ काम करने का जरिया कैसा है? परमेश्वर यहाँ क्या बता रहा है? यीशु मसीह, दुष्ट आत्मा कैसे निकाली जाती है? पवित्र आत्मा के सहायता से, है ना। तो प्रार्थना सुनी कैसे जाती है? जब सच्चाई आपको समझ में आती है, वही आपका छुटकारा आ जाता है, आपके प्रार्थना का यस एंड आमेन हो जाता है।
ओके, स्वर्ग का जो रियाम है, परमेश्वर का स्पिरिचुअल रियाम जो है वो एक्टिवेट हो जाता है आपके शब्द से, क्योंकि आपको जानकारी आ गई शब्दों की। उस जानकारी में से आप जब मांगते हैं, परमेश्वर के सच्चाई की जानकारी के नीचे आकर आप जब मांगते हैं तो आप कनेक्ट हो जाते हैं उन रास्तों से जो आपके एमेन, यस एंड एमेन हुए प्रार्थनाएं बन जाती है। समझ में आया? लेकिन आपको परमेश्वर से वो मिलना चाहिए वचन, तो आप उसको यस एंड एमेन की पूरी खातिरी के साथ आपके लाइफ में वो उतर आ जाता है। ओके, उस तरह से हमारे प्रार्थना जब निकलती है ना, मैंने वहां प्रार्थना किया, पिता हमें झूठे भविष्यद्वक्ताओं से बचा, हमें ये कर वो कर, ऐसे मैंने प्रार्थना किया, क्योंकि उस समय हमने वचनों के अंदर से भेद को समझ लिया था और उसे ग्रहण किया था, और उसके आने वाले समय के लिए हमने प्रार्थना कर ली। अब ये प्रार्थना हमारी क्या हो गई, उस एरिया ऑफ लाइफ में सेटिंग बन गई, आत्मिक क्षेत्र में परमेश्वर की अरेंजमेंट बन गई। हम नहीं जानते हमारे रास्ते में कभी ऐसे लोग हमारे पल्ले पड़ेंगे, हम नहीं जानते हैं। ओके, तो उस समय का इंतजाम हमने अब भी कर दिया। ओके, इसकी वजह से हमारे मार्ग वहां से गुजरते समय हमको कोई भी प्रकार की चिंता नहीं करना है, क्योंकि हमारी प्रार्थना के कारण वहां पर ऑलरेडी परमेश्वर का आत्मिक सेटिंग लग चुका है। ओके, तो परिस्थिति को पार करना हमारे अंदर का बल हमारा प्रार्थना बनाता है। ठीक है, और परिस्थिति को पार करके निकलने से हम गवाही बन जाते हैं। ठीक है, तो प्रार्थना उसके पहले है और गवाही उसके बाद आती है। तो हम बिफोर हैंड प्रार्थना क्यों करते हैं? क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हमको वचन के आधार से बताता है कि ऐसे ऐसे समय है, ऐसे ऐसे योजनाएं हैं, ऐसे ऐसे प्रकार है, तो हमने प्रार्थना किया, वही हमारा भविष्य बन जाता है। समझ में आया? वहां पर सेटिंग हो जाती है, वो रास्ता बन जाता है। अब विपत्ति के रास्ते शैतान अगर घुसाना चाहेगा आपको, ठीक है, तो अब आपने ऑलरेडी प्रार्थना करके रखा है, तो ये सेटिंग आपकी ज्यादा बलवंत है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो परमेश्वर के हथियार है वो सबसे ज्यादा सामर्थी है। ओके, अंधकार के शक्तियों से ज्यादा सामर्थी है। ओके, तो हमारे पास जो इंस्ट्रक्शन हमने ऑलरेडी प्रार्थना में उतार दिए हैं, यही एकमात्र कारण बन जाता है कि अब शत्रु के इंस्ट्रक्शंस हम पर हावी नहीं हो सकते हैं। ओके, तो इसके लिए आपको प्रार्थना इतना जरूरी है, आपको वचन पढ़कर उसको समझ के प्रार्थना करना इतना जरूरी है कि वो आपके रोज के जीवन को बनाता है, तैयार करता है, स्वर्ग के सेटिंग में डाल देता है वो। ओके, जैसे ही आप स्वर्ग के सेटिंग में डाल दिए, फिर आप के अंदर कुछ घुसाने की शक्तियों को काम किए जाए, कुछ भी किए जाए, आप उससे उभर कर बाहर निकल आएंगे। ओके, आपका शरीर आप छुड़वा कर आ जाएंगे, आपका प्राण आप छुड़वा कर चलेंगे, आपका हर एक हिस्सा आप छुड़ाने की ताकत रखेंगे। और छुड़ाता कैसा है? परमेश्वर के आत्मा के सहायता से छुड़ाया जाता है। ओके, आपको परमेश्वर कोई भी रास्ता देगा, कैसा भी रास्ता देगा, छुटना तो छुटना ही है, दैट्स ऑल। ओके, और फिर आपके अंदर का परमेश्वर का माहौल और परमेश्वर की सेहत आपके अंदर बनी रहती है एकदम सही ढंग से। आमीन। तो यहाँ पर घुसाना पड़ता है दुष्ट आत्माओं को, ये बात आपको समझ में आना चाहिए। वो घुसाने का तरीका कब होता है? जब मनुष्य आत्मा को कोई ओवरटेक कर लेता है। समझ में आया? जब ओवरटेक कर लिया तो वो इंसान दुष्ट आत्मा के अधीन चला जाता है। लेकिन हमारे साथ वो नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा हमारा नियंत्रण ले चुका है। अब हम खुद अपने शरीर प्राण आत्मा को नहीं चलाते हैं, परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर के वचन के दायरे में हमको चलाता है। इसके लिए हम पाप से नफरत करते हैं, अधर्म के कामों से दूर भागते हैं। कोई भी ऐसी एरिया जो परमेश्वर के आत्मा को खेदित करती है, जल्दी से हम छोड़ देते हैं। ये हमारा ओबीडियंस है। तो हमारा आत्मा अभी परमेश्वर के आत्मा का गुलामी में है।
ओके, उसके अधीनगी में है। इसके लिए जिम्मेदारी हमारे मनुष्य आत्मा के ऊपर नहीं है, अब जिम्मेदारी परमेश्वर के आत्मा के हाथों में है। ओके, यही एक कारण है कि हमारा दृढ़ गढ़ परमेश्वर है। आमीन। अब हमारे शरीर को सही रखना, प्राण को सही रखना, हमारे आत्मा में सही सब कुछ चलाए रखना, सब कुछ परमेश्वर का आत्मा ठीक ढंग से रचना करता है। हमको सिर्फ ओबे करना है उसको, हमको सिर्फ आज्ञा पालन करना है उसको। आमीन। अब ये सारा आज्ञा पालन करते करते जब हम चल रहे होते हैं तो हमारा मसीही जीवन उन्नति की तरफ जा रहा होता है। अगर मनुष्य आत्मा उसको आज्ञा पालन नहीं करता है तब क्या हो जाता है, जब शत्रु सीधे रास्ते से नहीं आता है अभी वो, ओके, अब वो कहाँ से आता है, आपके 5 सेंसेस में से आता है, आपके दायरे में खड़ा होता है, आपके नजदीक खड़ा होएगा या आपके इर्द गिर्द घूमेगा, ओके, या आपको कुछ खाने पीने में देगा, या आपको कैसा जरिया जो टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं उसके, ओके, या आंखों में आंखें डाल के देखेगा, या अपने चेहरे को आपके सामने दिखाएगा, या आपके सामने से वो घूमेगा ताकि आप उसके बदन को देखेगा तो उसके शक्तियां आपको कैच कर लेगी। ओके, तो वो शक्तियों को घुसाने के काम करता है, ये सारी ट्रिक्स है उसके, और वो सारे ट्रिक्स उसके पास इतने ज्यादा मात्रा में है कि आप उसकी स्टडी करना भी भूल जाएंगे, क्योंकि वो स्टडी हो नहीं सकती, इतनी मात्रा में उनके पास गंदगी के इंस्ट्रक्शंस पड़े हुए हैं आपके अंदर दुष्ट आत्माओं को घुसाने के लिए। समझ में आया? जैसे जैसे दुष्ट आत्माएं घुसाते जाते हैं वो वैसे वैसे हमारा मसीह जीवन ढीला पड़ता जाता है। इसकी वजह से हमको परमेश्वर के आत्मा में भरपूर रहने की जरूरत है, क्योंकि यही वो आत्मा है जो दुष्ट आत्माओं को निकालता है, और यही वो परमेश्वर का आत्मा है जो हमको सामर्थ्य से परमेश्वर के वचन में बनाए रखता है। हमारा हौसला परमेश्वर के वचन में है, ना कि दुष्ट आत्माओं में। तो ये घुसने के तरीके जो है वो चोरी छिपे रास्ते हैं, ओके, वो सामने नहीं रास्ते, वो चोरी छिपे हैं। वो आपको शेक हैंड भी करेंगे, आपको लगेगा वो लोग शेक हैंड किए, लेकिन शेक हैंड के द्वारा उन्होंने आपके अंदर बीमारियों को घुसा दिया, ओके, उनके दर्द को घुसा दिया, या उनके अंदर के बैड लक को आपके अंदर घुसा दिया, वो स्पिरिट को आपके अंदर घुसा दिया। ठीक है, अब उसके बाद क्या, आपके अंदर परमेश्वर के साथ का ओबीडियंस डिक्लेयर करेगा कि आप जीतेंगे या हारेंगे। समझ में आया? परमेश्वर के साथ ओबीडियंस आपका बताएगा कि प्रभु यीशु का आत्मा आपको बचाएगा या उनके हवाले कर देगा। समझ में आया? तो आपका ओबीडियंस मायने करता है। आपने ओबे क्या करना है, आपको कैसे मालूम पड़ेगा? आपको वचन को पढ़ना पड़ेगा। ओके, जब आप वचन को पढ़ेंगे, जब आप वचन के अधीन रहेंगे, इम्पॉसिबल है ऐसे घुसाई हुई शक्तियों का ज्यादा लंबा असर आपके ऊपर रुकना असंभव है। मेरी बात को मान लो। प्रार्थना, वचन, पवित्र आत्मा, बात खत्म करो, सब कुछ लाइन में रह जाएगा, सब कुछ सीधाई में रहेगा, सब कुछ डिवाइन ऑर्डरलीनेस में चलेगा। आपका विरोधी चाहे मन कैसे करे फर्क नहीं पड़ता है। प्रार्थना, प्रभु भोज, वचन पढ़ना, परमेश्वर के राज्य में बोना, परमेश्वर के संगति के लोगों में परमेश्वर के संगति देते रहना, ये बातें आप कभी मत त्यागिए। आपके अंदर चाहे जितना शत्रु मनमानी करे, आप उससे हमेशा जीतते हुए ही पार होते जाओगे। आमीन। हमेशा हमेशा, एक दिन के लिए नहीं, 2 दिन के लिए नहीं, हमेशा। जितना आप परमेश्वर को अपने आप को अर्पण देते रहेंगे, आप उतने सेफ साइड में रहेंगे। जितना आप खुद के लिए जियोगे, शरीर में आप अपने मर्जी के दोस्त बनाए रखेंगे, प्राण के लिए आप अपने मर्जी के कुछ ठिकाने बनाए रखेंगे, और फिर आप परमेश्वर को थोड़ा समय देंगे, वैसे आप बचाए नहीं जाते हैं। ओके, आपके प्राण की भी आपको परमेश्वर के आज्ञा पालन की चौकसी में रखना है। आपको शरीर की भी परमेश्वर के आज्ञा पालन के चौकसी में रखना है। परमेश्वर हाँ कहे उसे हाँ कहना है, परमेश्वर ना कहे उसको ना कहना है, तब आप सुरक्षित रहते हैं।
ओके, तो इसके लिए आप कभी नहीं डरना है, किसी भी बात से नहीं डरना है, क्योंकि डर का भी आत्मा घुसाया जाता है। आपको क्यों डर लगता है? वो लोग कहते हैं कर नहीं तो डर नहीं। ओके, तो करनिया आप नहीं कर रहे तो डरने की जरूरत क्या है ना? तो आपके पास परमेश्वर है, डर का आत्मा नहीं है। परमेश्वर का आत्मा डर का आत्मा नहीं है। तो डर घुसाया क्यों आपके अंदर? अगर घुसाया है तो आपने उसको बनाए क्यों रखा? ओके, आपको उसको निकालना है, वचन के साथ निकालना है। पवित्र आत्मा वचन के आधार से आपको बल देता है उस डर को भगाने के लिए। ओके, कोई एरिया ऑफ लाइफ आपको डराने ना पाए, चाहे बीमारी रहे, चाहे कोई पैसे की तंगी रहे, बिजनेस का कोई भी हिस्सा, कोई भी एरिया ऑफ लाइफ, कोई भी आपको जो भी आपको पिता परमेश्वर दिया है, अगर कुछ भी उसमें खामियां नजर आने लगे, डरने की अवस्था नहीं है। यहाँ जोर बढ़ाओ, प्रार्थना, वचन, परमेश्वर के राज्य में बोना, प्रभु भोज लेना, सब कुछ आपका सही समान एकदम परमेश्वर के अंदर टकाटक रखेगा परमेश्वर। हालेलुया, आपको बिल्कुल चिंता करने का विषय नहीं रहेगा। आमेन। ये तरह का आप दुनिया समझ जाइए जो आत्मा की जगत चलती है। दुष्ट आत्मा कैसे काम करते हैं? बलवंत के घर में घुसाए जाते हैं। ठीक है, तो बलवंत का घर यानी शरीर प्राण में घुसाए जाते हैं। ओके, उनके घरों में अगर समझो उनके अंदर घुसाए नहीं जाते, उनके घरों में, चीजों में कहीं ना कहीं वो प्रभाव देने के लिए घुसाए रखते हैं। ओके, सर्प हवा के पास प्रभाव देने के लिए चला गया, है ना? क्योंकि सर्प कैसा था? चतुर था। ओके, कुछ चीजें आपको ऐसे खिलाई पिलाई जाती है जिसके अंदर दुष्ट आत्मा का प्रभाव, सोचे आपको मिलेगी, दुष्ट आत्मा के दृष्टि आपको मिलेगी। दुष्ट आत्मा ने जब सर्प ने हव्वा को कुछ खाने के लिए कहा, उसने जब खाया उसके बाद उसको अपने खुद की नग्नता दिखाई दी और उन दोनों को परमेश्वर के आवाज का सामना करने से डर लगा, क्योंकि उनको ये पहचान आई कि नग्न अवस्था में परमेश्वर के सामने नहीं जाना है। ओके, और जब परमेश्वर ने पूछा कि तुमको किसने कहा कि तुम नंगे हो, क्या तुमने वो फल खाया? ओके, तो परमेश्वर ने उनको ये इंस्ट्रक्शंस बताया ही नहीं था, उनको कैसे जानकारी आ गई? ओके, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर ने मना किया हुआ फल को खाया। समझ में आया? तो आपको वो खाना पीना जो शत्रु आपको देता है, वो इसीलिए देता है कि आपको वो ऐसे कुछ इंस्ट्रक्शंस में चलाना चाहता है जिसके अंदर से आपको कुछ पाप अधर्म के जानकारियां मिल जाएगी और आपका शारीरिक जीवन मुश्किल में चला जाएगा। ये कारण से फिर परमेश्वर को आप आवाज सुनेंगे लेकिन उसके सामने जाएंगे नहीं, आप प्रार्थना से उसको विनती नहीं करेंगे, आप उसका सामना नहीं करेंगे, क्योंकि आपके अंदर अब शर्म और डर चला आया है कि आप परमेश्वर का सामना कैसे करें। समझ में आया? तो आप उस समय फिर चाहे जितनी परेशानियां हो, आप दुनिया भर के पास्टर्स लोगों को फोन कॉल करने लगते हैं। भाई क्यों? बहन क्यों? आप क्यों खुद नहीं प्रार्थना करते हैं? क्योंकि आपके अंदर की अनाज्ञाकारिता, ओके, आपके अंदर कमजोरी बन चुकी। समझ में आया? जो आपको नहीं करना चाहिए था, आपने उसे विश्वास में ले लिया और कर लिया। अब आपको हिम्मत नहीं है, खुद की प्रार्थना को परमेश्वर सुनता है, इस पर आपका हियाव नहीं है, धैर्य नहीं है। अनाज्ञाकारिता आपका बल तोड़ देती है, आपकी दौड़ को वो कमजोर कर देती है। ओके, आप अनाज्ञाकारिता में अगर आपको चलाना है, इसके लिए लोग आपको खिलाने पिलाने में कुछ डाल देते हैं, आपको कोई एरिया, कोई माध्यम से आपको आपके अंदर कुछ ऐसे रास्ते वो तैयार करते हैं कि आप उस रास्ते को विश्वास में लेना है। ओके, जैसे ही आपने उसको विश्वास में ले लिया, अब आप उसके लिए आप खुद प्रार्थना नहीं करेंगे, आप लोगों को ढूंढेंगे, क्योंकि आपके अंदर जो है उसके ऊपर से आपका ध्यान हट गया है। परमेश्वर ने कहा, मैंने कभी तेरे अंदर से पवित्र आत्मा को हटाया। ओके, आदम और हवा को परमेश्वर ने कहा, मैंने कभी तेरे अंदर से तुझे कहा तू नंगा है, मैंने कब कहा?
ओके, तो परमेश्वर के कहने में सामर्थ्य है, और जहां परमेश्वर कह नहीं रहा है और हम समझ रहे हैं तो वहां पे कमजोर अवस्था बन जाती है। ओके, यही एक एरिया ऑफ लाइफ है कि हमको भविष्यद्वक्ताओं की जरूरत लगती है, हमको और कोई प्रार्थना वीरों की जरूरत लगती है, हमको कोई ले हैंड करने की जरूरत पड़ जाती है, हमको 12-12 घंटे कुछ जो कोई हमको कर सकता है वैसे छुटकारे देने के काम हमारे ऊपर करने के लिए हम अपने आप को 12-12 घंटे के ट्रैवल लगाकर चले जाते हैं। भाई क्यों, बहन क्यों? अनाज्ञाकारिता ने आपको दुर्बल कर दिया। समझ में आया? अनाज्ञाकारिता शत्रु है आपका, आपके कमजोर अवस्था को लाने का, तब भी जाके आपके अंदर शत्रु के काम हो जाते हैं। समझ में आया? अनाज्ञाकारिता नहीं रखोगे, शत्रु चाहे जितना जो करे, परमेश्वर का वचन कहता है तू ही प्रबल रहने वाला है शत्रु के ऊपर। आमीन, तू ही प्रबल रहने वाला है, तू प्रबल रहने वाला है। तो बात क्यों है फिर और आगे जाने की? हम खुद प्रबल है भाई बहन, हमारी प्रार्थना प्रबल है। ओके, हमारे उपवास प्रबल है, हमारा प्रभु भोज लेना प्रबल है, हमारा परमेश्वर के संगति में रहना प्रबल है। सारे ये इतनी ज्यादा शक्ति है हमारे अंदर कि शत्रु के कोई काम हम अपने ऊपर रुकने नहीं देंगे। घसीट घसीट कर, खदेड़ खदेड़ कर निकाल कर हम उसको निकाल कर भेज देंगे अपनी जगह में। ओके, हमारे ऊपर उनका कुछ नहीं चल सकता है। कंडीशन आज्ञा पालन, हालेलुया, कंडीशन है आज्ञा पालन। अगर आप यहाँ वहां भागने लगे ना प्रेयर के लिए, भाई और बहन, आपकी आज्ञा पालन में दोष है। समझ में आया? आपके आज्ञा पालन में दोष है। यही एरिया है जो आपको बताती है भाई और बहन मेरी प्रार्थना तो नहीं, बस और 2 जन प्रार्थना करेंगे ना सो हो जाएगा, नहीं वो पासवान करेंगे ना तो हो जाएगा, नहीं वो भविष्यद्वक्ता कुछ करेंगे ना हो जाएगा, नहीं वहां वो मिनिस्ट्री कुछ करेगी ना तो हो जाएगा। क्यों माय डियर फ्रेंड्स? आज्ञा पालन में आप टूट गए हैं। ये हालत उसकी निशानी है कि आज्ञा पालन आपके अंदर से टूट गया है। ओके, जो खरा है वो आज्ञा पालन से दिखाई देता है, और जो झूठा है वो आज्ञा पालन से ही दिखाई देता है। आज्ञा पालन नहीं करोगे, झूठ के अवतार सामने है। ओके, प्रेयर टावर्स प्रेयर्स के रिक्वेस्ट लेते लेते थक जाते हैं। मसीही लोगों के प्रेयर रिक्वेस्ट लेके क्या फायदा है? ओके, उनको चाहिए आप आज्ञा पालन कीजिए, आप खुद अन्य जातियों के लिए खड़े हो जाओ। यहाँ तो मसीही लोग खुद होके मसीही प्रेयर टावर्स के पीछे करते हैं, है ना? तो ये नहीं होना चाहिए। हमको, हमारी जिम्मेदारी है, हमारे ऊपर कुछ लोग परमेश्वर रखा है कि उनको बचाना है, उनको परमेश्वर के राज्य में लाना है। तो हमारी जिम्मेदारी के काम हमको आज्ञा पालन के बल से पूरे करने हैं। हमको आज्ञा पालन तोड़ने का अवस्था कमजोर कर देता है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। या कैसे कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल लूट सकता है जब तक कि पहले वह उस बलवंत को न बांध ले। ओके, तो बलवंत को बांध ले तो वो लूटपाट कर सकता है ना? तो अगर आप बांधने ही नहीं दे रहे तो लूटपाट का तो सवाल ही नहीं आता है। ओके, तब वह उसका घर लूट लेगा। जो मेरे साथ नहीं वह मेरे विरोध में है, और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वह बिखेरता है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा न की जाएगी। जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा उसका यह अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा उसका अपराध न तो इस लोक में और न परलोक में क्षमा किया जाएगा। पेड़ और उसका फल, 33 वचन से आगे। यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, या पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो, क्योंकि पेड़ अपने फल ही से पहचाना जाता है। हालेलुया, हालेलुया। तो आप बंधन में हो या नहीं हो, आपके लाइफ में से ही पहचाना जाता है। हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसी अच्छी बातें कह सकते हो?
देखो, हे सांप के बच्चों तुम बुरे होकर, ओके, कैसे क्या यूहन्ना ने डायरेक्ट ये लोगों के ऊपर ये शब्द यूज किया, हे सांप के बच्चों। सांप के बच्चों यानी सांप से पैदा हुए, ओके। अगर हम अभी अपने आप को देखेंगे तो हम नए सृष्टि कहलाए जाते हैं। पानी में डुबकी लगाकर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में हमने बपतिस्मा लिया और हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा उंडेला गया। अब परमेश्वर का आत्मा हमारा मालिक है, हम उसके गुलाम हैं, हम उसके संगति में है, ओके। हम अपने आप का सारा इच्छा बल शक्ति उसको दे दिए, वो हमको चलाता है, वो हमको इंस्ट्रक्शन करता है। अब हम उसके संतान हैं, ओके। अब यहाँ पे बोला है सांप के बच्चों, इसका मतलब सांप की आत्मा उन मनुष्यों के, सांप की आत्मा मतलब शैतान, ओके। शैतान की आत्मा उन मनुष्यों के अंदर चली गई और उन मनुष्यों के अंदर के मनुष्य आत्मा का वो गुलामी बना ली और फिर बाद में मनुष्य आत्मा को वो चला रही है, ठीक है। ऐसा जो लोग हैं उनके लिए कहा गया है हे सांप के बच्चों, ठीक है। अब उनके अंदर सा इंस्ट्रक्शन देने वाला मालिक कौन है? शैतान। समझ में आया? अब शैतान उनके अंदर का इंस्ट्रक्शन देने वाला है। क्या वो परमेश्वर के तरफदारी के इंस्ट्रक्शन देगा क्या उनको? जाओ मसीहों की सेवा करो, जाओ मसीहों को अच्छा रखो, जाओ मसीहों के लिए अच्छे अच्छे काम करो, ऐसा इंस्ट्रक्शन देगा क्या? नहीं। वो क्या इंस्ट्रक्शन देगा? लताड़ो, कुचलो, मसीहों को परेशान करो, मसीहों को प्रार्थना मत करने दो, मसीहों को बदनाम करो, मसीहों को परेशानी में, यही तो इंस्ट्रक्शन देगा, है ना। तो इसके लिए यहाँ पे लिखा है सांप के बच्चों, जब तुम्हारे अंदर परमेश्वर का आत्मा उंडेला नहीं गया है तब तुम क्या हो जाते हो? शैतान के संतान रहते हो। अब शैतान के संतान हो तो तुम भली बातें कैसे कहने लगे? तुम्हारे अंदर तो ये हो नहीं सकता है, यानी तुम क्या कर रहे हो? धोखा दे रहे हो, है ना। तो उनके अंदर का सारा गंदगी को वो छुपाने के लिए ऊपर वो क्या कर रहे? भेड़ की खाल पहन रहे और अंदर की गंदगी के अंदर वो एंजॉय कर रहे हैं, ओके। ऊपर भेड़ की खाल यानी जो मोरालिटी के रूल्स है, ओके। मोरालिटी की, सज्जनों की जो रीतियां है, सज्जनों की रीतियां वो ऊपर से दिखावे में चलते हैं। हाय, हेलो, वेर आर यू, ये सारी चीजें, ओके। जो भी मतलब जैसे जैसे चलता है वो सज्जनों में जो एक्सेप्ट किया जाता है, भली भली बातें, ओके, भले तरह का एक बिहेव, अच्छा बिहेव, ओके। आप सज्जनों की तरह मुखवटे पहन लेते हैं, लेकिन अंदर से आपके अंदर मसीह का आत्मा नहीं है, तो आप शैतान के संतान हो। समझ में आया? जो परमेश्वर का आत्मा से नहीं है वो परमेश्वर के विरोध में शैतान के इंस्ट्रक्शंस को सुनता है, ओके। और उनके पास अब क्या आ गया? तुम बुरे होकर कैसी अच्छी बातें कह सकते हो, ओके। जब उनके बर्ताव हमको अच्छे दिखाई देते तो लुभावने लगते हैं हमको, ओके। वो ईश्वरीय गुणों से हमको लुभाते हैं, ठीक है। लेकिन असल में उनके अंदर कौन है? वो डिक्लेयर करता है कि असल में उनकी जड़ जो है वो कड़वी है, ओके। नागदौना सा विष है उसके अंदर, जहर है, ओके। वो आपको भरोसे में लेना आपके लिए खतरा हो जाएगा। समझ में आया? आपको उनके ऊपर भरोसा लाना आपके लिए मुश्किलें हो जाएगी। समझ में आया? तो इसके लिए परमेश्वर का वचन कहता है, हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसी अच्छी बातें कह सकते हो? यानी तुम क्या कर रहे हो? मुखवटा पहन रहे हो, है ना। क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है, यानी तुम्हारे मन की कड़वी जड़ जो है वो तुम्हारे मुंह से तुम नहीं ला रहे हो। यानी तुम बहुत ही टैलेंटेड हो, अपने मन के अंदर पड़ी हुई गहरी गंदी जटिल बात को सही तरह से बंद रखा है, और जो झूठ से आपको जो मुखवटा धोखा देने वाला बात है वो बराबर से आप अपने मुंह से अच्छी अच्छी बातों को देकर लोगों का मन जीत ले रहे हैं, है ना। भला मनुष्य
मन के भले भंडार से भले बातें निकालता है और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। अब यहाँ पर मसीह रहे या बिना मसीह रहे, हर एक के बात के ऊपर परमेश्वर ने फटका मारा है। ओके, एक फाइट दिया है। ओके, बात आपका कहाँ से निकलता है उसका रूट उसने बताया है। चाहे तुम अंदर कड़वे हो, ठीक है, लेकिन तुम्हारे मुंह से तुम भली बातें बोल रहे हो, तुम जीत जाओगे। समझ में आया? चाहे तुम्हारे मन के अंदर, यानी तुम परमेश्वर के सामने ठीक रहोगे, ये परमेश्वर कह रहा है। ओके, देखो, आबेल की हत्या करना चाहता था काइन, ठीक है, लेकिन काइन अपने मुंह के ऊपर कड़वी एक्सप्रेशंस को लाया और परमेश्वर ने उसको पूछा, तेरा मन, तेरा चेहरा उदास क्यों है? ओके, क्या तू भला करेगा तो स्वीकारा नहीं जाएगा क्या? तू भला कर, नहीं तो पाप दरवाजे में खड़ा है और तूने पाप के ऊपर प्रभुता करनी है। और पाप की इच्छा क्या है? वो तुझ में से काम करना चाहता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? उसने अपने अंदर की कड़वी जड़ को अपने शरीर के ऊपर प्रकट होने दिया। लेकिन इतने ऐसे जबरदस्त लोग इस दुनिया में है कि वो उस कड़वी जड़, अगर उनको हर्ट भी हो गया तो भी उनके एक्सप्रेशन में वो इतने मीठे रहते हैं कि वो उनके जड़ के अंदर पेनफुल अवस्था आ चुकी है, वो बताते नहीं है। ओके, अगर आपने जबरदस्त किसी का इंसल्ट किया है तो वो लोग सीख चुके हैं सोशल एरियाज में, ओके, सामाजिक तौर पर किस तरह से हमारे एक्सप्रेशंस को कंट्रोल में रखना है। ओके, हर बुरी कामनाएं, हर बुरी इच्छाएं, सभी जगहों में आपको सभी लोग गंदे काम करते हुए नहीं दिखेंगे। अच्छी तरह के सोशल वे से, मोरालिटी के स्टैंडर्ड्स में, ओके, सज्जनों के रीतियों में लोग आपको रास्ते पर चलते घूमते फिरते मिलेंगे। ओके, कोई भी कहीं पर भी आपको अड़म तड़म एकदम खुल्लम खुल्ला पाप करता हुआ नहीं मिलेगा, सिवाय इसके कि कहीं पर ऐसे लोगों को छूट दे गई है। ओके, जो वहां पर वो करते रहेंगे ऐसे, वो अलग बात है। लेकिन आप कोई एक ऑफिस में जाइए, ओके, अधिकारी के सामने बैठकर आप गंदे काम नहीं कर पाते हैं। ओके, आप भले ही बाहर कहीं पर गंदे काम किए होंगे, लेकिन अगर आप किसी के सामने जाते हो, किसी के परिवार के सदस्यों के मिलने के लिए घर में जाते हो, तो आप गंदे काम नहीं करते हो। आप अपने अंदर से सज्जन बर्ताव को अपने बाहरी रूप के ऊपर लेकर आते हो। यही परमेश्वर कह रहा है, तुम जो प्रकट कर रहे हो ना, उसके ही कारण तुमको निर्दोष या दोषी ठहराया जाएगा। यानी भले ही तुम्हारे अंदर भरपूर गंदगी पड़ी थी, लेकिन कुछ समय था कि तुमने उस गंदगी को अपने ऊपर हावी होने नहीं दिया और तुमने उसको कंट्रोल में रखा, अंदर छुपा के रखा, और तुमने बाहरी ओर से अच्छाई को और भलाई को दिखाया। तुम्हारे शब्दों में से भी गंदगी नहीं आई, कड़वाहट नहीं आई, सब कुछ तुमने सही ढंग से सोशल रूप में तुमने सभी मनुष्यों के लाभ के तरह ही तुमने बर्ताव रखा है। यही वो कारण है कि मैं तुमसे प्रसन्न हूं। समझ में आया? यही वो कारण है कि मैं तुम्हारे उस गंदे कड़वे कामों को माफ कर देता हूं। समझ में आया आपको? तो हमारे बातों ही से, मुंह से निकलने वाली बातों ही से हम दोषी या निर्दोष ठहराए जाएंगे। समझा? तो आप काइन का एक्सप्रेशन परमेश्वर पकड़ लिया और काइन ने आबेल की हत्या कर दी। समय का घात लगाया था उसने। ओके, कुछ दुष्ट लोग समय का घात लगाने तक हमारे साथ सज्जन का व्यवहार करते हैं। ओके, लेकिन परमेश्वर कहता है वैसा भी अगर किसी ने किया तो भी मैं उसके अंदर के कड़वे जड़ को माफ करूंगा।
ओके, लेकिन वो घात किया उसको माफ करेगा ऐसा नहीं कह रहा है, क्योंकि घात किया इसका मतलब क्या हो गया, उसके अंदर का कड़वे जड़ को उसने मैनिफेस्ट किया, प्रकट किया। अगर कोई घात ना करे, चोरी नाश घात ना करे, चाहे कितना भी दर्द का अनुभव उसके अंदर रहेगा हमारे खिलाफ, तो भी वो अपने आप को अच्छाई में ही दिखाता रहेगा, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, वो निर्दोष ठहराने का पावर में चढ़ चुका है। ओके, परमेश्वर उसको निर्दोष ठहराएगा। समझ में आया? तो परमेश्वर का वायदा है ये हम सब के लिए, हमारे अंदर कोई कड़वी जड़ को उठने ही नहीं देना है। लेकिन जो दुष्टता के जगत के लोग हैं उनके अंदर तो कड़वाहट तो भरी पड़ी है, लेकिन फिर भी आप देखेंगे माहौल को कैसे वो शांत और अच्छे स्वभाव से, अच्छे गुणों से, अच्छे तरह से सामने ला रहे हैं। तो उनका जो प्रकट कर रहे हैं वो अच्छे स्वभाव को, अच्छे गुणों को, लोगों के फायदे के गुणों को, उनको प्रॉब्लम में होगा ऐसा बिहेव नहीं कर रहे वो, तो ये सब कुछ मायने किया जाएगा, काउंट किया जाएगा उनको निर्दोष ठहराने के लिए। कितना प्यारा परमेश्वर है हमारा, है ना। स्वर्गीय चिन्ह की मांग। इस पर कुछ शास्त्रियों और फरीसियों ने उससे कहा, हे गुरु, हम तुझसे एक चिन्ह देखना चाहते हैं। उसने उन्हें उत्तर दिया, इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं, परंतु योना भविष्यद्वक्ता के चिन्ह को छोड़ कोई और चिन्ह उनको न दिया जाएगा। योना 3 रात दिन जल जंतु के पेट में रहा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र 3 रात दिन पृथ्वी के भीतर रहेगा। निन्वे के लोग न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने योना का प्रचार सुनकर मन फिराया। और देखो, वहां यह वह है जो योना से भी बड़ा है। दक्षिण की रानी न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएगा, क्योंकि वह सुलेमान का ज्ञान सुनने के लिए पृथ्वी के छोर से आई। और देखो, यहाँ वह है जो सुलेमान से भी बड़ा है। यहाँ पर आपको वो चीजें अच्छे से समझ में आएगी जो बर्ताव के बारे में है। कुछ लोग पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स लेते हैं। हमारे वक्त में जब हम कॉलेज स्टडीज कर रहे थे और हमको एजुकेशन लेवल पर जब हम अपने आप को तैयार कर रहे थे जॉब्स के लिए वगैरह, तो उस समय हमको पर्सनालिटी ट्रेनिंग्स दिए जाते थे। ओके, सज्जनों के व्यवहारों को हमको सिखाया जाता था। अगर स्कूल में भी आप देखेंगे सज्जनों के व्यवहार ही सिखाए जाते हैं, कैसे हाय कहना है, कैसे हेलो कहना है, कैसे गुड मॉर्निंग कहना है, कैसे लोगों का आदर करना है, कैसे अपने अंदर से अपने कोई भी बुरे बर्ताव को किस प्रकार से हमने छुपा रखना है, हमने उसको लोगों के ऊपर जाहिर नहीं करना है। हमारे जाहिर करने के तरीके हमेशा अच्छी अच्छी बातों के होने चाहिए। ये सारे गुण हमको सिखाए जाते थे। वही पर्सनालिटी गुणों को भी हमको सिखाया जाता था। तो ये तरह से यहाँ पे कहा गया है कि वो जो है वो कौन रानी थी, वहां से वो सुलेमान की ज्ञान की बातों को सुनने के लिए आई थी। यानी अच्छी बातों का पीछा करने वालों के लिए भी कुछ हौसला दिया है परमेश्वर ने। ओके, कि उनको एक बार माफी बहुत जल्दी मिल जाएगी। ओके, इसके लिए लोग जरा सा घमंड करते हैं। ओके, थोड़ा थोड़ा घमंड करते हैं, क्योंकि उन्होंने अच्छे चरित्र को रखा, क्योंकि उन्होंने अच्छे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया जब वो मसीह नहीं थे तब, और क्योंकि उन्होंने अपने चरित्र को संभाल कर रखा, क्योंकि उन्होंने बुरी बातों में अपने मन को नहीं लगाया, क्योंकि उन्होंने अच्छी अच्छी बातों को ही चुनाव किया। यही एक जोर वो बताते हैं कि हम मसीही बन गए। समझ में आया? क्योंकि यहाँ वो लिखा है। ओके, अगर अच्छे गुणों का आप पीछा करोगे, अपने ऊपर से अच्छे गुणों को आप प्रकट करोगे, तो जल्दी से उद्धार में आ जाओगे आप। समझा? आप जल्दी से उद्धार में आ जाओगे, ये परमेश्वर का वायदा है आपको। समझ में आया? तो ये सारे गिनती किए गए, तो यहाँ पे कहा गया है इतना सब लोग अच्छे सज्जनों के व्यवहार करना जानने लगे हैं, सीख रहे हैं लोग, स्टडी कर रहे हैं लोग, अच्छे बर्ताव करना, लोगों के साथ अच्छे मन रखना वो सीख रहे हैं।
ओके इतना सब कुछ सीखने के बावजूद फिर क्या हो रहा है, जो लोग इतना कुछ देखने के बावजूद भी कुछ बुरे ही करते रहना चाहता है, तो परमेश्वर कहता है कि जो ऐसे लोग सीख रहे हैं जिनके पास परमेश्वर नहीं है, फिर भी वो अच्छे गुणों को अपने अंदर लेके व्यक्त करने की सीख रहे हैं, वो जल्दी बचाए जाएंगे इन लोगों से ज्यादा जो हठीले हैं। हाँ, जो जान रहे देख रहे कि अच्छे गुणों से बर्ताव करने वाले लोग इस दुनिया में हैं, फिर भी वो बुरा करना छोड़ना नहीं चाहते हैं, वो लोग परेशानी में रहेंगे, लेकिन ये लोग बचा लिए जाएंगे, उनके आंखों देखते वो बचाए जाएंगे। समझ में आया? तो ये आपको फर्क समझ में आना चाहिए। अधूरे सुधार से विपत्ति। 43 वचन, जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है और पाती नहीं। तब कहती है, मैं अपने उसी घर में जहां से निकली थी लौट जाऊंगी, और लौट कर उसे सुना, झाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है। तब वह जाकर अपने से और बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है और वे उसमें बैठकर वहां वास करती है, और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। इस युग के बुरे लोगों की दशा भी ऐसी होगी। मसीहों की होगी ऐसा लिखा है क्या? इसके लिए मुझे बहुत खराब लगता है। मसीह जब प्रचार करता है तो ठीक से प्रचार ना मिलने के कारण लोग गुमराह हो जाते हैं। ये मसीहों को नहीं दिया है, युग के बुरे लोगों के लिए दिया है। ओके, मैंने क्या बताया कि लोग पर्सनालिटी डेवलपमेंट सीख रहे हैं, अच्छे बर्ताव करने की ट्रेनिंग लेते हैं। ओके, स्कूल कॉलेजेस में जॉब्स में आपको ट्रेनिंग दी जाती है, आपके सहकर्मियों के साथ, कोवर्कर के साथ, आपको बॉस के साथ, आपके अधिकारियों के साथ कैसा बर्ताव करना है आपको ट्रेन किया जाता है। बच्चों को स्कूल में ट्रेन किया जाता है, सज्जन व्यवहार किस प्रकार से किए जाते हैं। ओके, जेंटाइल्स की तरह, मतलब जेंटलमैन की तरह किस प्रकार से बिहेव किए जाते हैं, ये मनुष्य जाति को सिखाया जाता है। ओके, मोरालिटी के स्टैंडर्ड सिखाए जाते हैं। ओके, तो इज्जतदार जीवन कैसे जीना है, लोग एक दूसरे को, अपने घर के परिवार के लोगों को भी सिखाते हैं कि अपने घर में कैसे रहना है, बाहर कैसे रहना है। तो इतना सब कुछ सिखाने का भी परमेश्वर बोल रहा है, अगर वैसे सीखे हुए लोग भी रहेंगे तो भी चलेगा, मैं उनके पाप को बहुत जल्दी माफ करूंगा, उन लोगों से ज्यादा जल्दी माफ करूंगा जो हठीले हैं। समझ में आया? न्याय के दिन में उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार मैं करूंगा। ओके, उनको पनिशमेंट के जरिए में ज्यादा लंबा समय नहीं दूंगा, मैं अच्छा व्यवहार करूंगा उनके साथ, ऐसा लिखा है। और फिर यहाँ पर परमेश्वर कह रहा है, लेकिन देखो, अगर तुम इतनी अच्छी बातों को सीख रहे हो और फिर बाद में आप यीशु मसीह को नहीं स्वीकारोगे तो तुम आधे अधूरे हो। समझ में आया? तो आप देखो, आपको कोई भी जगह में कैसे भी आप रहो, आप अगर अच्छे बर्ताव भी करो तो भी आपका मनुष्य आत्मा कंट्रोल में ले लिया जाएगा। आप कभी तो ये बात सुनोगे, अरे वो इतना अच्छा इंसान था, पता नहीं क्या हो गया, ड्रंकर्ड बन गया। ओके, अरे वो तो इतना अच्छा इंसान था, पता नहीं क्या हो गया, लेकिन वो लड़ाई झगड़े कर रहा है, अभी वायलेंट हो गया, एग्रेसिव हो गया है। अरे वो तो इतना अच्छा इंसान है, लेकिन देखो क्या हो गया उसके साथ। अरे वो तो अपने जॉब में रुकता ही नहीं है, वो जॉब छोड़ के निकल जाता है। ओके, ये क्या हो गया? आपके अच्छे बर्ताव, इसके लिए लोग क्या कहते हैं, अच्छे बिहेव करने वाला इंसान जो है वही मार खाता है, ऐसे लोग बोलते हैं, है ना। लोग बोलते हैं तुम अच्छा कर रहे हो ना, इसके लिए तुम्हारी ये हालत है। समझ में आया? क्योंकि हमको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती है अच्छे कामों के बदले में अच्छा प्राप्त करने का। ओके, हमारे साथ डिवाइन कनेक्शंस होता नहीं है। ओके, हम अच्छा करते जाते हैं और मार खाते जाते हैं, अच्छा करते जाते हैं और गिरा दिए जाते हैं, अच्छा करते जाते हैं और पीछे रह जाते हैं, क्योंकि अच्छा करने का नतीजा हमको डिवाइनली उसका रिवॉर्ड जो मिलना चाहिए, उसके बीच में दुष्टता के जगत के लोग आ जाते हैं।
ओके। और यही मैंने आपको बताया, जो बलवान को बंदिश करता है उसको लूटपाट करना आसान हो जाता है। तो इन लोगों को वो लोग क्या करते हैं, अच्छाई के वक्त में जब इनका अच्छे अच्छे रिवॉर्ड्स आने का समय रहता है, उसको बलवान जो उनके अंदर का मनुष्य आत्मा है उसको वो बांध लेते हैं और उसको बुरे बुरे समयों का आत्मा दे देते हैं। बुरे बुरे बैड लक, मिसफॉर्चून, बदनामी, रेप्यूटेशन, फेलियर, रगड़े झगड़े, दुष्टता, ये सारी आत्माएं उनको दे देते हैं। और फिर उनके जो अच्छे कामों के रिवॉर्ड से वो सारा डायरेक्शन टर्न करते हैं स्पिरिचुअल रियाम में से, और वो दुष्टता के लोग अपने तरफ जादू टोना के द्वारा ले लेते हैं। समझ में आया? तो इसके कारण लूटपाट की बात कही है। मनुष्य को अगर बलवान को बांध लिया जाए तो उसके घर की लूटपाट करना आसान है। तो उसके घर की लूटपाट करने के लिए कुछ रहना तो चाहिए ना उसके घर में, है ना? खाली घर को कौन लूटेगा? ओके, तो उस घर की रौनक जो है वो उनके भले कामों से भरती है। ओके, भले कामों से घर सुंदर बनाया हुआ रहता है। उन्होंने सारी चीजों को बुद्धि के साथ उन्होंने चुनाव करके अपने जीवन को भले भले अच्छे अच्छे रिवॉर्ड्स आने वाले काम उन्होंने किए होते हैं। और वो कामों का जो एरिया ऑफ लाइफ उनका प्रॉफिट का समय रहता है, उस प्रॉफिट को फिर जादू टोना करने वाले लोग क्या करते हैं, उस भले इंसान को बांध देते हैं। और क्या कर देते हैं, उस भले इंसान को बांध देते हैं और क्या करते हैं, उस भले इंसान के सारे अच्छी जो रिवॉर्ड है, जो प्रतिफल है, उसका डिवाइनली अरेंज करके रखा हुआ, जो भले काम करेगा उसको अच्छे अच्छे चीजें मिलने का जो डिवाइन ऑर्डरलीनेस है, वो ऑर्डरलीनेस को घुमा लेते हैं और वो सारी अच्छी चीजों को निकाल लेते हैं। और फिर वो सारी अच्छी चीजें निकाल लेने के बाद सब गंदगी, बुरी काम, बुरे चीज, बुरे आत्माएं, बुरे दशाएं, भटकना, सब कुछ बिगाड़ा हुआ, ये सब कुछ उसके लाइफ में भर देते हैं। ओके, इसके लिए आप लोग डायलॉग क्या मारते हैं फिर कि क्या फायदा है, हम इतना अच्छा काम करते हैं, फायदा क्या है, हमको तो सब बुरा ही मिलता है। ओके, कोई अच्छा काम कर रहा होगा और उसका लाइफ अच्छा दिख नहीं रहा होगा तो उसको यही बोलते हैं, तू बहुत अच्छा है ना, इसके लिए तेरे साथ ऐसे हो रहा है। ओके, क्या हो रहा है, जादू टोना वाले लोग उसके आत्मा को बांध देते हैं और उसके अच्छे काम का रिवॉर्ड जो आता है वो छीन लेते हैं, लूट लेते हैं। हालेलुया। तो ये बात यहाँ पर बताया गया है, इस युग के बुरे लोगों की दशा भी ऐसी ही होगी। ओके, इसके लिए लोग ज्यादा अच्छा रहना पसंद नहीं करते हैं। इसके लिए वो हमेशा अपने अंदर कुछ ना कुछ उथल पुथल करते ही रहते हैं, क्योंकि उनको मालूम है उनको इतनी भलाई करने के बाद भी उनको कुछ रिवॉर्ड मिलने वाला नहीं। ऐसा ही उनका विश्वास हो गया। असल में ऐसा नहीं है, परमेश्वर ने रिवॉर्ड रखे उनके लिए, लेकिन मिलता कहाँ है उनको। ओके, छीन लिया जाता है, उनको मालूम ही नहीं है। ओके, उनसे वो छीन दिया, लूट लिया गया, उनको मालूम ही नहीं है। हालेलुया। यीशु की माता और भाई, 46 वचन से आगे, जब वह भीड़ से बातें कर ही रहा था तब उसकी माता और भाई बाहर खड़े थे और उससे बातें करना चाहते थे। किसी ने उससे कहा, देख तेरी माता और तेरे भाई बाहर खड़े हैं और तुझसे बातें करना चाहते हैं। यह सुनकर उसने कहने वाले को उत्तर दिया, कौन है मेरी माता, कौन है मेरा भाई? और अपने चेलों की ओर अपना हाथ बढ़ाकर कहा, देखो मेरी माता और मेरे भाई ये है। हालेलुया। देखा आपने, रिश्तों की रिश्तेदारियों में भी यीशु मसीह ने रास्ता दिखा दिया किसको अपना कहना है, जो यीशु मसीह की आज्ञा पालन करता है। ओके, चेला मतलब क्या है, फॉलोवर। ओके, फॉलोवर मतलब क्या है, किसी के उपदेश के पीछे पीछे हाँ में हाँ मिलाते हुए वैसा ही चाल चलन में उतार कर जीना है, उसको कहते हैं चेला। ओके, तो इसका मतलब उसमें और यीशु मसीह में फिर फर्क नहीं रहता है, क्योंकि चाल चलन दोनों के एक ही मन से हो रहे हैं। ओके, तो फिर ये चेलों के लिए कहा गया है, देख ये चेले ऐसे लोग जो रहेंगे यीशु मसीह के फॉलोवर्स, वही हमारे रिश्तेदार है। हालेलुया। क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले वह मेरा भाई और मेरी बहन और मेरी माता है। हालेलुया।
कितना प्यारा वचन है। आप मसीह हो, अगर आपको रिश्तेदारों ने छोड़ दिया है या आपको परेशानी में डाल दिया या आपके खुद के घर के माँ बाप आपसे नफरत करते हैं क्योंकि आप मसीह के अंदर ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हो, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि वो आपके रिश्तेदार नहीं है। रिश्तेदार वह है आपके असल में, ओके, जो यीशु मसीह को फॉलो करते हैं। फॉलो करने वाले लोग, सिर्फ यीशु मसीह के लेबल को लेकर चलने वाले लोग नहीं, छिप छिप कर पाखंडी लोगों के उद्घाटन करने वाले लोग नहीं, ओके, जो सच्चाई के मार्ग में स्थिर रहते हैं, वही आपके रिश्तेदार है। तो आपको रिश्तेदार खोने का डर नहीं रहना चाहिए। दुनिया भर में प्रभु यीशु मसीह के चेले बहुत सारे हैं जो सच्चे मन से परमेश्वर की आराधना में, परमेश्वर के फॉलोवर्स से, परमेश्वर के पीछे पीछे आज्ञा पालन में चल रहे हैं और जरा भी वो आज्ञा पालन से हटना नहीं चाहते। हजारों हजारों की संख्याओं में आपके रिश्तेदार मौजूद है इस पृथ्वी के ऊपर, ओके। तो रिश्तों को खोने से नहीं डरना है। थैंक यू फादर गॉड, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हमें फिट एंड फिक्स कर इन वचनों में, ईश्वरीय रचना में, डिवाइन ऑर्डरलीनेस में हमको लेकर आने की हम तुझसे विनती करते हैं। सारे प्रकाशनों को पिता हमारे अंदर सील कर और इसके अनुसार हमारा जीवन भी परमेश्वर अच्छे और उजियाले के पैमाने में, ऊंचे दर्जे में, उन्नति के मार्ग को पकड़ लेने वाली अवस्थाओं में लेकर आ, जीतने वाला बना हमको। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन।